A very good afternoon to all. Welcome to Pauja Law Academy. Today we are going to discuss important sections of the Negotiable Instrument Act from the point of view of the examinations. So starting with Chapter 17. Chapter 17 deals with penalties in case of dishonor of check, for insufficiency of funds in account. It is covered under section from section 138 to 148. Before starting with the Negotiable Instrument Act, I would like to discuss important terms which will be used deliberately. Payee. Payee is the person who is a holder, or he is the person who is a holder in due course, or in case of a complainant in whose favor a check has been drawn. जिसके फेवर में चेक ड्रॉ किया गया है उसको हम पेई कहते हैं, या ही इज द होल्डर ऑफ द चेक इन ड्यू कोर्स, एंड इन केस चेक बाउंस हो जाता है तो वी कॉल हिम अ कंप्लेनेंट. सेकेंड, ड्रॉअर. ही इज द पर्सन हु मेक्स द चेक, and in case accusation against him, he will be called as an accused. Debt or other liability. Debt or other liability is the legally enforceable debt or liability which is discussed under section 138 explanation. Before starting with the act, I would like to discuss important timelines in the Negotiable Instrument Act which have to be adhered to. First is, check should be presented to the bank in the bank within its validity period or within the period of 3 months, whichever is earlier. This has been provided under section 138 proviso number 1A. And when the check has been presented in the bank and the same has been dishonored, a bank receipt is issued by the bank or bank memo, and within the period of 30 days of receiving that bank receipt, payee has to serve a notice to the drawer which is provided under section 138 proviso B, and from the date of receiving the notice, the drawer who has made the check, he has to make the payment within a period of 15 days. In case he doesn't make the payment within the period of 15 days, no payment has been made by the drawer, then the payee has the option to go to the court and file a complaint against the drawer that the check has not been complained in the court. And in the summary trial, the time limit for the disposal of the case is 6 months. This has been provided under section 143(3). So we'll just revise it. Within the period of 3 months, check has to be presented in the bank by the payee, and in case of dishonor of the check by the bank, a bank receipt or memo is received, and within 30 days from the date of the receipt of the bank memo, a notice has to be served to the drawer by the payee. And in case the payee doesn't pay the amount within 15 days, then the payee has the option to go to the court and file complaint. And in case of summary trial, the disposal has to be done within the period of 6 months. This is the obligation upon the court. There are certain presumptions which are taken by the court, as this has been provided under section 139, 140 and 146. Section 139, presumption is in favor of the holder of the check, that is payee. Court shall presume that he is having the check and he received that check in discharge of a debt or other liability unless the contrary is proved. कोर्ट ये प्रिज्यूम करेगा कि पेई को जो चेक मिला है वो किसी डेप्थ और या फिर लाइबिलिटी के डिस्चार्ज के लिए पेई को दिया गया है ड्रॉवर द्वारा. फिर ड्रॉवर जब कोर्ट में प्रोसिक्यूशन होता है, उसके अगेंस्ट कंप्लेंट फाइल होती है, तो ड्रॉवर कोर्ट में आके ये नहीं कह सकता कि ही हैज़ नो रीज़न टू बिलीव व्हेन ही इशूड द चेक. तो कोर्ट ये प्रिज्यूम करेगा अंडर सेक्शन 140 दैट चेक हैज़ बीन ड्रॉन बाय द ड्रॉवर, कि चेक ड्रॉवर ने ही इशू किया है. कोर्ट में ये आके बिलीव ड्रॉवर जो है ये प्ली नहीं ले सकता या ये डिफेंस नहीं ले सकता कि ही हैज़ नो रीज़न टू बिलीव व्हेन ही इशूड द चेक. So this is a presumption which will be taken by the court that he has only issued the check.
Section 146 talks about the bank slip or memo, as we discussed previously. Whenever a check has been dishonored by the bank, so bank will issue a memo or slip, bank slip, stating that this check has been dishonor of check. This check has been dishonored due to the insufficiency of funds or any other reason. So bank will mark that statement, and unless the contrary is proved, so that official remark of the bank, the seal of the bank or official remark, whatever the bank gives on that memo, it will be the presumption that this check has been dishonored. So there are three presumptions. One is provided under section 139, one is provided under section 140, and the another is provided under section 146. 139 is the presumption in favor of the holder of the check, that is payee, and 140 is the presumption that the drawer has only issued the check and he cannot say that he has no reason to believe when he issued the check. And third presumption is section 146, bank slip, that will be the prima facie evidence or proof that official remark of the bank on the bank slip that there has been dishonor of the check. We can say check bounce. Before starting with the act, now we'll come to the provisions. Section 138 talks about the dishonor of the check. In other language we can say check bounce. So there are certain essentials which have to be fulfilled in order to bring the case in the court. First is, drawer should have a bank account. Check shall be drawn by the drawer. Third is, for payment to the another. Another means payee. फोर्थ इज डिस्चार्ज ऑफ डेप्ट और अदर लाइबिलिटी. जब भी कोई ड्रॉवर, उसका जब बैंक अकाउंट होगा और वो चेक उसने इशू किया होगा, किस लिए इशू किया होगा? पेमेंट करने के लिए किसी को. और वो पेमेंट क्यों करनी थी? क्योंकि डिस्चार्ज ऑफ डेप्ट और लाइबिलिटी, कोई भी उसकी डेप्ट या लाइबिलिटी जो पेंडिंग है उसके लिए, जो ओ करता है पेई को, उसके लिए उसने पेमेंट करने के लिए चेक इशू किया. वो डिस्चार्ज ऑफ या अदर लाइबिलिटी होलली भी हो सकती है, पार्टली भी हो सकती है. एंड फिफ्थ, चेक रिटर्न बाय द बैंक अनपेड. जैसे ही पेई ने बैंक में चेक डाला, बैंक ने डिसऑनर कर दिया उसको. Reason can be any, that insufficient amount or exceed the amount as per the agreement with the bank. Suppose a person issues a check of amount of rupees 5,000 और उसके अकाउंट में ही 2,000 रुपये हैं, तो इन दैट केस इनसफिशिएंट अमाउंट के रिमार्क के साथ बैंक उस चेक को डिसऑनर कर देगा एंड बैंक एक मेमो इशू करेगा या बैंक स्लिप इशू करेगा स्टेटिंग दैट द अमाउंट हैज़ बीन insufficient. And in any other case, suppose a person has issued a check amount of 5,000 rupees और उसके अकाउंट में 10,000 रुपये हैं और फिर भी वो चेक डिसऑनर हो जाता है. रीज़न देयर बीइंग कि उस पर्सन ने जब बैंक अकाउंट ओपन किया था तो बैंक को एक लिमिट दी थी कि कोई भी इंसान को आता है और 2,000 के अमाउंट से ऊपर चेक लेके आता है तो उसको ऑनर ना किया जाए. ये एक एग्रीमेंट हो रखा है ड्रॉअर का बैंक के साथ. इन दैट केस again the check will be dishonored. So that is, there are two reasons in this section. One is insufficient amount and another is exceeds the amount as per the agreement with the bank. And the moment the check has been dishonored, the offence has been committed in this section 138. And punishment prescribed under this section is up to 2 years. 2 साल तक की सज़ा हो सकती है अगर चेक बाउंस के केस में, या फाइन हो सकता है जो कि एक्सटेंड करेगा अप टू द ट्वाइस द अमाउंट ऑफ द चेक, यानी कि 2 गुना चेक के का अमाउंट तक का फाइन हो सकता है, या फिर दोनों. 2 साल तक की सज़ा भी हो सकती है, ट्वाइस द अमाउंट ऑफ द चेक भी हो सकता है फाइन, या फिर दोनों हो जाएगा. इसकी नेक्स्ट स्लाइड. Section 138, as we have discussed, it talks about the penalties, and now section 139 we have already discussed. It is a presumption in favor of holder of the check
that he received this check in discharge of any debt or other liability. And section 140 talks about defense which is not allowed to the drawer. What defense is not allowed to the drawer is he cannot say that when he issued the check, he has no reason to believe when he issued the check. This is also presumption as we have discussed previously. Next is offenses by the company. Section 141 talks about the offenses by the company. What will be the liability of the company in case of the dishonor of the check? Previously 138 we have discussed that if any person issues the check, what will be his liability. What if a person issued the check is a company? In that, who will be liable? Firstly, every person who is in charge of the company, responsible for the conduct of the business या company, कोई भी person जो उस company का इंचार्ज होगा या वो responsible होगा business conduct करने के या उस company के लिए responsible होगा, that person shall be held liable for the offence under section 138. He shall be deemed to be guilty of an offence and liable for punishment. Exception इसका क्या है? अगर that in charge या responsible person वो कोर्ट में आके ये कहते हैं, प्रूफ कर देता है कि उसके नॉलेज के बिना, without his knowledge this offence has been committed, तो he can take that plea and he shall not be held liable. Second is he can come to the court and say that he exercised all due diligence to prevent the commission. उसने हर वो कोशिश करी जिससे कि वो ऑफेंस कमिट ना हो. तो इन दैट केस ऑल्सो उस पर्सन की, इन दोनों की, इनमें से किसी पर्सन की लाइबिलिटी नहीं बनेगी. एंड इन द थर्ड केस, नॉमिनेटेड डायरेक्टर, ऐसी कंपनी का या कोई ऐसा पर्सन जो एम्प्लॉयड हो, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन में एम्प्लॉयड हो या वहाँ के डायरेक्टर हो, जो कि ओन्ड या कंट्रोल बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट का एम्प्लॉय या सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय, या फिर कोई नॉमिनेटेड डायरेक्टर उसमें से किसी भी कंपनी का जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ओन्ड या कंट्रोल की गई है, या कोई फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन है जिसमें एक पर्सन नॉमिनेटेड डायरेक्टर है, तो ही कैन नॉट बी हेल्ड लायबल फॉर द ऑफेंस अंडर दिस एक्ट. एक्सप्लेनेशन, इस सेक्शन में एक्सप्लेनेशन है कि कंपनी में कौन कौन इंक्लूड होगा. कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट, इसमें फर्म भी इंक्लूडेड हो जाएगी, एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल्स, और डायरेक्टर में कोई भी पार्टनर होगा फर्म का, वो भी इंक्लूड होगा. सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 141 टॉक्स अबाउट द लाइबिलिटी ऑफ द कंपनी. अभी हमने पढ़ा था लाइबिलिटी ऑफ कंपनी में कि कौन कौन लायबल होंगे. एक तो पर्सन इंचार्ज, second is who is responsible for the conduct of the business and company, and exceptions were these three. And now अगर if the offence has been committed by the company, अगर ये कोर्ट में ये प्रूव हो जाता है कि उस डायरेक्टर या उस इंचार्ज के कंसेंट से, उसकी कनाइवेंस से, उसको नॉलेज थी सीक्रेटली कहीं ना कहीं, या उसकी नेग्लेक्ट की वजह से कोई भी ऑफेंस कमिट हुआ है इस 138 में, तो वो डायरेक्टर, मैनेजर, सेक्रेटरी या अदर ऑफिसर ऑफ दैट कंपनी, ही शैल बी हेल्ड लायबल and he shall be deemed to be guilty of an offence and liable for the punishment under section 138. Next section talks about section 142, cognizance of offence. When the offence has been committed under Negotiable Instrument Act under section 138, who will take the cognizance and how the cognizance will be taken in such cases? It will be taken upon a complaint in writing. जो पेई होगा वो कंप्लेंट फाइल करेगा कोर्ट में इन राइटिंग, पेई बाय और बाय द होल्डर इन ड्यू कोर्स वी कैन कॉल हिम, एंड द लिमिटेशन पीरियड फॉर फाइलिंग अ कंप्लेंट इज 1 month फ्रॉम द डेट ऑफ नॉन पेमेंट. Within 1 month from the date of cause of action. Cause of action कब arise हुआ था? When the drawer fails to make the payment within 15 days from the date of receipt of the notice. Next, extension of limitation. As per the provision of law, 1 month का टाइम है कंप्लेनेंट को, पेई को कोर्ट में कंप्लेंट फाइल करने का. बट अगर वो कोर्ट में आके ये शो कर दे कि ही हैड सफिशिएंट कॉज, so then in that case court can extend the period of limitation. Trial will be conducted by the metropolitan magistrate or judicial magistrate of first class. Subclause 2,
of this section 142 was added by the 2015 Amendment Act, which talks about the local jurisdiction. This subsection was inserted by 2015 amendment. This talks about if check delivered for collection through account where payee holds the account. Explanation: where the check is delivered for collection at any bank branch of payee, check shall be deemed to have been delivered to the payee's branch. If the check presented for payment otherwise through account, bank of the drawee where the drawer maintains the account. This basically talks about the कि jurisdiction क्या होगा कोर्ट का कि कहाँ पे चेक बाउंस के केस फाइल होंगे. जहाँ पे पेई का अकाउंट होगा, जहाँ पे उसने चेक डाला होगा तो वहाँ होगा. अगर सपोज किया कि पेई का अकाउंट इस बैंक में है, इसने चेक इस ब्रांच में इशू कर दिया, तो माना जाएगा कि इसने इसी बैंक में वो चेक डाला है, तो इट शैल बी डीम्ड टू बी द लोकल ज्यूरिसडिक्शन. इन केस वो अदरवाइज थ्रू एन अकाउंट किसी और अकाउंट के थ्रू कहीं और जाके करता है, तो इन दैट केस लोकल ज्यूरिसडिक्शन होगा जहाँ पे ड्रॉई का बैंक ब्रांच है, जहाँ पे वो अकाउंट मेंटेन करता है. Next, section 142A. This section was inserted by 2015 amendment, which talks about the validation for transfer of pending cases. Section 142A subclause 1 talks about the non-obstant. This is a non-obstante clause. That means notwithstanding, कहीं पर भी कुछ भी लिखा हो, चाहे वो CRPC जजमेंट में हो, किसी डिक्री में हो, ऑर्डर हो या डायरेक्शन ऑफ द कोर्ट में हो, चाहे जहाँ पे भी कोई कुछ भी लिखा है, बट जो जिस इस सेक्शन में लिखा गया है वही मान्य होगा. सारे केस जो कि अभी हमने प्रीवियसली लोकल ज्यूरिसडिक्शन पढ़ा था, वो माना जाएगा डीम ट्रांसफर है, इसी एक्ट में उसका ट्रांसफर किया गया है. Subsection 2 of section 142A talks about where a complaint is filed by the payee or holder or case is transferred and such complaint is pending in that court, all subsequent complaints under section 138 against the same drawer shall be filed before the same court, irrespective of whether those checks delivered or presented within territorial jurisdiction of that court. Suppose किया, we'll understand this thing with an example. Mr. X issues check to Mr. Z and the same is being dishonored. Mr. Z files a complaint in court number 1, which has jurisdiction. While this case was pending, Mr. X जब ये केस पेंडिंग था, एक और चेक इशू करता है Mr. Z को, बट कहीं और किसी और जगह पे, और वो फिर से डिसऑनर हो जाता है. तो इन दैट केस X कहाँ पे कंप्लेंट फाइल, Z कहाँ पे कंप्लेंट फाइल करेगा X के खिलाफ? सेम पहले वाले पेंडिंग कोर्ट में जहाँ पे पहले कंप्लेंट पेंडिंग है, या फिर दूसरे वाले कोर्ट में जहाँ जिस ज्यूरिसडिक्शन में उसने चेक प्रेजेंट किया था. अकॉर्डिंग टू दिस सेक्शन 142A विच वॉज इंसर्टेड बाय द 2015 अमेंडमेंट एक्ट, जो मिस्टर Z है वो पहले वाले कोर्ट में जहाँ पे उसने कंप्लेंट फाइल करी थी, उसी कोर्ट में ही केस फाइल करेगा, ना कि वो दूसरे वाले कोर्ट में जहाँ पे उसका ज्यूरिसडिक्शन था. ऑल सब्सिक्वेंट कंप्लेंट्स, जितनी भी सब्सिक्वेंट कंप्लेंट्स होंगी, सेम ड्रॉवर, सेम ड्रॉई, सेम पेई, सेम ड्रॉवर, जितनी भी इनकी सेम कंप्लेंट्स होगी वो सारी एक ही कोर्ट में फाइल होगी, जो कि है पेंडिंग प्रीवियस कोर्ट में. सबसेक्शन 3 टॉक्स अबाउट द सेम थिंग, क्योंकि जब ये 2015 का अमेंडमेंट आया था, दैट केम इनटू इफेक्ट विद इफेक्ट फ्रॉम 15th June 2015. तो सेम थिंग इज फाइल्ड व्हेन द मोर देन वन प्रोसिक्यूशन इज फाइल्ड बाय द सेम पेई, सेम ड्रॉवर अगेंस्ट द सेम ड्रॉवर. अगर वो पेंडिंग है डिफरेंट कोर्ट्स में, तो कोर्ट के नोटिस पे लेके आया जाएगा इस डेट के बाद जितने भी केस फाइल हुए हैं. कोर्ट अगर सपोज किया एक कोर्ट नंबर 1 में केस पेंडिंग है सेम ड्रॉअर का एंड सेम ड्रॉई का, सेम पेई का एंड सेम ड्रॉअर का, और कोर्ट नंबर 2 में दूसरा केस पेंडिंग है, तो इस डेट के बाद जितने भी केसेस फाइल है तो कोर्ट की नोटिस पे लेकर आया जाएगा. तो कोर्ट क्या करेगी, जो सेकंड वाला सब्सिक्वेंट केस होगा वो कोर्ट नंबर 1 में ट्रांसफर कर देगी. Such court shall transfer to the court having jurisdiction before which the first case is pending. जहाँ पे पहला केस पेंडिंग होगा वहाँ पे वो कोर्ट ट्रांसफर कर देगी.
सेक्शन 143 टॉक्स अबाउट द समरी ट्रायल। समरी ट्रायल का जुरिस्डिक्शन JMFC दैट इज जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास और मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के पास होगा, और जो डिस्पोजल होगा उसका विद इन 6 मंथ्स करना होगा। प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 262 एंड 265 ऑफ CRPC अप्लाई। जो प्रोसीजर होगा, जो प्रोविजंस फॉलो किए जाएंगे समरी ट्रायल के लिए, वो सेम होंगे जो कि सेक्शन 262 टू 265 ऑफ CRPC में प्रोवाइड किया गया है। और इसका जो ट्रायल होगा वो डे टू डे बेसिस पे होगा, और अगर डे टू डे बेसिस पे नहीं हो पाता तो मजिस्ट्रेट को रीजंस रिकॉर्ड करने पड़ेंगे कि डे टू डे बेसिस पे क्यों नहीं हुआ है। और इसमें कन्विक्शन होगा इन केस, तो मजिस्ट्रेट के पास पावर कितनी है, इसकी सज़ा वैसे है कितनी 2 साल तक की, और फाइन कितना है ट्वाइस द अमाउंट ऑफ फाइन। बट इन केस ऑफ समरी ट्रायल इम्प्रिजनमेंट सिर्फ 1 साल तक की सज़ा देने का प्रावधान है, और फाइन अप टू ₹5,000 रुपीज़। If it appears to the magistrate at the commencement of or in the course of the trial that the enhanced punishment is required or it is undesirable to try summarily, अगर during the pendency of the case या during commencement जैसे ही केस स्टार्ट हुआ या during the course of the trial magistrate को ये लगते हैं कि 1 साल की सज़ा बहुत कम होगी, तो वो क्या करेंगे, एक रीजंस रिकॉर्ड करेंगे ऑर्डर में कि it is undesirable to try this case summarily एंड एनहांस्ड पनिशमेंट ज़्यादा पनिशमेंट देने की ज़रूरत है। तो इन दैट केस सारे विटनेसेस को रिकॉल करने की पावर है, दोबारा से केस हियर किया जाएगा, रीहियर करा जाएगा, और अकॉर्डिंगली वो डिसाइड होगा। सेक्शन 143A it talks about the interim compensation. This provision was added by the 2018 amendment which came into effect on 1st September 2018। जो भी इंटरिम कॉम्पनसेशन अवार्ड की जाएगी कोर्ट के द्वारा, इस चीज़ में 2018 में ये प्रावधान आया था कि इसमें अमेंडमेंट लाके इस सेक्शन को इंसर्ट किया गया था। इंटरिम कॉम्पनसेशन अवार्ड करने की पावर डिस्क्रिशनरी पावर है कोर्ट की, इट इज़ नॉट अ मैंडेटरी पावर। कोर्ट के पास ये पावर है कि वो इंटरिम कॉम्पनसेशन अवार्ड कर सकता है कंप्लेनेंट को ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द केस, और कितना अमाउंट तक कर सकते हैं, अप टू द अमाउंट ऑफ 20% ऑफ द चेक अमाउंट। सपोज कि क्या 100 रुपीज़ का चेक है, तो इन दैट केस 20% तक का, कम भी हो सकता है इससे। कोर्ट के पास ये पावर है कि वो एक्यूज को ये डायरेक्शन देगा कि कोर्ट में इतने पैसे जमा कराएं। कंडीशन क्या होगी, लेकिन कौन सी कंडीशन पे ये वाली इंटरिम कॉम्पनसेशन अवार्ड की जा सकती है कोर्ट के द्वारा। फर्स्ट इज, अगर समरी ट्रायल चल रहा है या समन्स केस का ट्रायल चल रहा है, अगर ड्रॉवर जो है, जो एक्यूज है, प्लीड गिल्टी नहीं करता कोर्ट में, या फिर चार्ज फ्रेम हो जाता है, तो ओनली इन दैट केस इंटरिम कॉम्पनसेशन कैन बी अवॉर्डेड एंड नॉट अदरवाइज। अगर एक्विटल हो जाता है सपोज इन केस में एक्यूज का, तो इन दैट केस तो कंप्लेनेंट को कोर्ट ये ऑर्डर करेगा कि वो जो अमाउंट उन्होंने 20% या उससे कम का जितना भी परसेंट कोर्ट ने ऑर्डर किया था, जमा कराया था कोर्ट में, वो विद इंटरेस्ट एट द बैंक रेट जो भी उस फाइनेंशियल ईयर में, प्रिवेलिंग फाइनेंशियल ईयर में होगा, उसको रीपे करेगा एक्यूज को, ड्रॉवर ऑफ द चेक। और वो कब तक पे करना होगा, उसकी लिमिट होगी विद इन 16 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ द ऑर्डर, और उसको एक्सटेंड किया जा सकता है बाय 30 डेज अगर सफिशिएंट कॉज शो कर दिया जाए कंप्लेनेंट द्वारा कि वो टाइमली क्यों नहीं जमा कर पाया। दिस इज एप्लीकेबल इन बोथ द केसेस ऑफ ड्रॉवर ऑल्सो, कंप्लेनेंट ऑल्सो। लाइक इंटरिम कॉम्पनसेशन अवार्ड की गई थी, तो उस केस में ड्रॉवर को डायरेक्शन, कंप्लेनेंट को डायरेक्शन दिए गए थे, एंड इन अनदर केस ड्रॉवर को। तो दोनों में टाइम लिमिट सेम है, 60 डेज एंड एक्सटेंडेबल अप टू 30 डेज। फाइन जो इसमें इंटरिम कॉम्पनसेशन में अवार्ड किया गया था, अगर वो रिकवर कराना होगा इट विल बी रिकवर्ड एज अ फाइन अंडर सेक्शन 421 ऑफ CRPC में। जो प्रोसीजर 421 CRPC में प्रोवाइड किया गया है, उसी तरह जैसे फाइन रिकवर किया जाता है, उसी तरह से इंटरिम कॉम्पनसेशन भी रिकवर किया जा सकता है।
evidence of the complainant. Section 144 talks about the service of summons. अभी हमने 143A पढ़ा था, interim compensation. Now section 144. 144 talks about the mode of service of summons. कौन कौन से मोड में समन्स किया जा सकता है एक्यूज्ड को या फिर विटनेस को? वन इज बाय पोस्ट, सेकंड कोरियर सर्विस. कोरियर सर्विस वही होगी जो कि कोर्ट ऑफ सेशन द्वारा अप्रूव की गई है. सर्विस ऑफ समन्स टू एक्यूज और विटनेस जहाँ पे वो रिसाइड करता है वहाँ पे कर सकते हैं, जहाँ पे वो बिजनेस कंडक्ट करता है वहाँ पे, या जो जहाँ पे वो पर्सनली वर्क्स फॉर गेन. इन तीनों जगह पे ही एक्यूज या विटनेस पे सर्विस की जाएगी समन्स की. मोड्स होंगे बाय स्पीड पोस्ट और वो कोरियर सर्विस एज अप्रूव्ड. एक्नॉलेजमेंट जो होगी उसमें साइन किए जाएंगे एक्यूज या विटनेस के, तो माना जाएगा कि सर्विस हो गई है. या फिर जो पोस्टल अथॉरिटी है उस पर एक एंडोर्समेंट कर देंगे कि उसने रिफ्यूज़ कर दिया लेने से. कोई भी एक्यूज या विटनेस अगर समन्स को लेने से मना कर दे तो माना जाएगा कि वो डीम सर्विस है, कि उनको मिल गया है. कोर्ट में आके ये प्ली नहीं ले सकते एक्यूज या विटनेस कि हमें तो समन्स मिले ही नहीं थे. सेक्शन 145 टॉक्स अबाउट द एविडेंस ऑफ द कंप्लेनेंट. हमेशा जब भी कंप्लेंट फाइल होगी तो एविडेंस जितना भी होगा कंप्लेंट के साथ एक एफिडेविट कंप्लेनेंट को देना होगा. समनिंग एंड एग्जामिनेशन ऑफ एनी पर्सन फॉर एविडेंस ऑन एफिडेविट. कोर्ट ऐसी सिचुएशन भी आ सकती है जब कोर्ट खुद भी अपनी तरफ से सुओ मोटो या एप्लीकेशन पे एक्यूज या प्रोसिक्यूशन के एप्लीकेशन पे किसी भी पर्सन को समन कर सकता है और एग्जामिन कर सकता है और कोर्ट में कह सकता है कि यू गिव द एफिडेविट. सेक्शन 146 टॉक्स अबाउट द प्राइमा फेसाई एविडेंस. जो बैंक की स्लिप है एज वी हैव डिस्कस प्रीवियसली जिसमें प्रिजम्पशंस लिया था, जो बैंक की स्लिप माना जाएगा कि चेक हैज बीन डिसऑनर्ड, वो प्राइमा फेसाई एविडेंस होगा. इन एवरी प्रोसीडिंग ऑन प्रोडक्शन ऑफ द बैंक स्लिप विद ऑफिशियल रिमार्क. उस बैंक स्लिप पे बैंक का एक ऑफिशियल रिमार्क होगा जिससे पता लगेगा डिनोटिंग डिसऑनर ऑफ द चेक. तो इट विल बी द प्राइमा फेसाई एविडेंस इन द कोर्ट दैट द चेक हैज बीन डिसऑनर्ड and the court will presume that the check has been dishonored on the basis of that bank slip until and unless it is disproved. Section 147 it talks about the nature of the offense. Offense under section 138 जितने भी ऑफेंसेस एनआई एक्ट में है वो कंपाउंडेबल है. नॉट विथस्टैंडिंग क्लॉज है, कहीं पर भी कुछ भी लिखा हो सीआरपीसी में कोई भी ऑफेंस एनआई एक्ट में होगा तो वो कंपाउंडेबल होगा. सेक्शन 148 2018 की अमेंडमेंट से ऐड किया गया था. इट टॉक्स अबाउट द पावर्स ऑफ द अपीलेट कोर्ट. अपील बाय द ड्रॉअर अगेंस्ट द कन्विक्शन. जब भी सेक्शन 138 में ड्रॉअर का कन्विक्शन होता है इन केस, तो उसके पास पावर होती है कि वो कोर्ट में अपील में जाए अगेंस्ट द कन्विक्शन. अपील बाय द ड्रॉअर अगेंस्ट द कन्विक्शन अंडर सेक्शन 138. तो कोर्ट के पास क्या पावर होगी, वो क्या कर सकता है कोर्ट? मे पावर. दिस इज मे, तो दैट मीन्स डिस्क्रिशनरी पावर एंड दिस इज नॉट मैंडेटरी. कोर्ट के पास पावर होगी कि वो एक्यूज को या अपीलेंट को ऑर्डर करे कि वो मिनिमम 20%, अगर ट्रायल कोर्ट ने सपोज किया 10,000 रुपये का फाइन किया है तो उसका 20% मिनिमम वो कोर्ट में जमा कराएगा. और कोर्ट के पास ये भी पावर होगी कि ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द केस वो उसको रिलीज करे कंप्लेनेंट के फेवर में. इन केस ऑफ एक्विटल, अगर उसका एक्विटल हो जाता है कोर्ट से, अगर वो छूट जाता है, अपील उसकी एक्सेप्ट हो जाती है, तो कोर्ट शैल ऑर्डर, मैंडेटरी होगा कोर्ट के लिए कि रिस्पोंडेंट जो कंप्लेनेंट था जिसके फेवर में ट्रायल कोर्ट ने डिसीजन दिया था, बट अब
यहाँ पे अपहेल्ड नहीं हो पाया है, तो इन दैट केस कोर्ट कंप्लेनेंट को पेई या होल्डर ऑफ द चेक को ऑर्डर करेगा कि जितना भी अमाउंट 20% जमा हुआ था, 20 सपोज किया 2000 रुपये, तो वो रीपे करेगा टू द एक्यूज ड्रॉवर ऑफ द चेक विद इंटरेस्ट, बैंक रेट के जो भी उस फाइनेंशियल ईयर में प्रिवेलिंग होगा, करंट फाइनेंशियल ईयर में, विद इंटरेस्ट उसको उतना जो उसने डिपॉजिट किया था मिनिमम 20%, वो विद इन 16 डेज एक्यूज को देना होगा कंप्लेनेंट को। सेम थिंग एक्सटेंशन बाय द 30 डेज, अगर सफिशिएंट कॉज कोर्ट में शो हो जाता है तो वो एक्सटेंड हो जाएगा टाइम 60 डेज प्लस 30 डेज का। दिस इज एप्लीकेबल बोथ इन केस ऑफ द अपीलेंट ऑल्सो हु इज ड्रॉअर एंड द रिस्पॉन्डेंट ऑल्सो। अगर ऑर्डर किया जाता है कि 20% जमा कराए, तब भी सेम टाइम लिमिट है 60 डेज की कोर्ट में जमा कराने की। अगर वो रिलीज कराना हो, अमाउंट रीपे कराना हो, तब भी 60 डेज टाइम लिमिट है एंड 30 डेज का एक्सटेंशन है। नाउ विल जस्ट रिवाइज अगेन। विद check must be presented in the bank within its validity period or within the period of 3 months whichever is earlier। जब भी कोर्ट डिसऑनर ऑफ चेक होता है, जब भी बैंक की रिसिप्ट या मेमो मिलती है, उसके 30 दिन के अंदर अंदर ड्रॉअर को नोटिस देना होता है। यदि ड्रॉअर 15 दिन के अंदर अंदर नोटिस रिसीव करने के पेमेंट नहीं करता है, तो उसके 1 महीने के अंदर अंदर कंप्लेंट फाइल करनी होगी कोर्ट में, और समरी ट्रायल में विद इन 6 मंथ्स कोर्ट को डिस्पोज करना होगा केस। प्रिजम्पशंस बाय द कोर्ट, सेक्शन 139 में इन फेवर ऑफ द होल्डर थी प्रिजम्पशन कि जो उसने चेक रिसीव किया है वो इन डिस्चार्ज ऑफ द डेप्ट या अदर लाइबिलिटी के लिए किया हुआ है। सेक्शन 140 में था कि कोर्ट में ड्रॉअर आके ये डिफेंस नहीं ले सकता कि ही हैड नो रीजन टू बिलीव व्हेन ही इशूड द चेक। सेक्शन 146 में कोर्ट ये प्रिज्यूम करेगा जो बैंक स्लिप है वो डिसऑनर ऑफ चेक की है। तो दिस इज हाउ दीज आर द इम्पॉर्टेंट सेक्शंस। 13 sections are, one is section 138 which talks about the dishonor of the check, जिसमें punishment up to 2 years, fine up to twice the amount of fine या both। section 139 talks about the presumption in favor of the holder कि डेप्थ और लाइबिलिटी के लिए ही उसको चेक इशू किया गया जो कि लीगली इन्फोर्सिएबल है। सेक्शन 140 टॉक्स अबाउट द डिफेंस, जो डिफेंस ड्रॉअर को नॉट अलाउड है कि वो ये नहीं कह सकता कि ही डजंट हैव द रीजन टू बिलीव व्हेन ही इशूड द चेक। सेक्शन 141 टॉक्स अबाउट द ऑफेंसेस बाय कंपनीज। सेक्शन 142 टॉक्स अबाउट द कॉग्निजेंस ऑफ द ऑफेंस। कॉग्निजेंस कब होगा? कंप्लेंट फाइल होगी जब 1 महीने के अंदर अंदर, और इसके पास जुरिस्डिक्शन होगा जेएमएफसी के पास या एमएम के पास, और लोकल जुरिस्डिक्शन को डिफाइन किया गया है। सेक्शन 142 टॉक्स अबाउट वैलिडेशन फॉर द ट्रांसफर ऑफ पेंडिंग केसेस। सेक्शन 143 टॉक्स अबाउट समरी ट्रायल ऑफ द केसेस, जिसमें पनिशमेंट 1 साल तक की है और डे टू डे ट्रायल और 6 महीने के अंदर अंदर उसका डिस्पोजल करना होगा। सेक्शन 143 टॉक्स अबाउट द इंटरिम कॉम्पनसेशन, जो कि 2018 के अमेंडमेंट से ऐड किया गया था, जिसमें कोर्ट के पास पावर है कि वो 20% तक इंटरिम कॉम्पनसेशन अवॉर्ड कर सकती है। सेक्शन 144 टॉक्स अबाउट द मोड ऑफ सर्विस ऑफ समन्स, बाय पोस्ट भी हो सकता है, बाय कोरियर भी हो सकता है, अप्रूव्ड। सेक्शन 145 टॉक्स अबाउट एविडेंस ऑन एफिडेविट, कंप्लेनेंट का, प्रोसिक्यूशन का, एक्यूज का एफिडेविट में होगा एविडेंस। सेक्शन 146 टॉक्स अबाउट द बैंक स्लिप, जो बैंक स्लिप होगी वो एक प्राइम ऑफ ऐसा ही एविडेंस होगी कि चेक डिसऑनर हो गया है। सेक्शन 147 टॉक्स अबाउट द कंपाउंडेबल ऑफेंस। सेक्शन 138 में जितने भी ऑफेंसेस एनआई एक्ट में है वो सारे कंपाउंडेबल है। सेक्शन 148 टॉक्स अबाउट द पावर ऑफ अपीलेट कोर्ट। अपीलेट कोर्ट के पास ये पावर है कि वो मिनिमम 20% कोर्ट में जमा करा सके एक्यूज से during the pendency of the appeal. This is a discretionary power and this was inserted by 2018 amendment which came into effect from 1st September 2018. Thank you. These are the important questions. I hope you understand the video. Thank you for watching.